So hello guys, the topic for this video would be learning and memory. And in this video, we'll be covering some of the following topics, which would be the types of memory. We'll be discussing both the implicit and the explicit memories and their further types. We'll be also discussing the types of memory on the basis of the time duration. Then we'll be discussing about the classical conditioning and the operant conditioning. Under classical conditioning, I'll be discussing the Pavlov's experiment. And then we'll be discussing the neuronal basis of memory and a bit detail about the mechanism of long-term potentiation. So what is learning and memory? So learning is the process of acquiring knowledge, whereas memory is the process of storing that knowledge. Now the types of memory. So I have already said that the memory can be classified under two types. They can be it can be the implicit memory. Implicit memory is also called as the non-declarative form of the memory. Implicit memory, non-declarative form of memory और skill memory. इसका मतलब क्या है? कोई भी ऐसा वर्क जो आपको दिमाग चला के नहीं काम करना पड़ता और you are not consciously aware of that particular task. So it does not require consciousness and it does not usually involve the hippocampus. Hippocampus का involvement नहीं है. Implicit, non-declarative and skill memory, which further is classified under four types. So before that, what do you understand by explicit declarative memory? जिसमें conscious awareness आपको चाहिए, मतलब आप कुछ काम कर रहे हो और आपको पता है कि वो आप काम कर रहे हो, मजे में नहीं कर सकते. So memory of words, rules and languages associated with consciousness, and it is dependent on hippocampus. It is not solely dependent on hippocampus but involves hippocampus. Explicit memory further two types की है. So now let us look at the types of the implicit memory. चार types हैं. First is the procedural memory, then is the priming, associative learning and non-associative learning. Procedural memory क्या है? It includes skills, habits. तो जैसे आप brushing teeth कर रहे हो, so you're not consciously aware and you can still keep brushing your teeth. So that could be example of procedural memory. Priming is facilitation of recognition of words by prior exposure to them. इसका एक particular example देती हूँ. For example, I say that you recall a word, you name a fruit with letters G and R. So you name a fruit with letters G and R. So you are most likely to name grape. ठीक है, आप मुझे ग्रेप बोलेंगे मोस्ट लाइकली, ऐसा है. क्यों? बिकॉज मैंने आपको प्राइम किया जी और आर वर्ड से, लेटर से, एंड यू आर टेलिंग मी द नेम ऑफ द फ्रूट. सो प्रायर एक्सपोजर से आपने अगर ग्रेप पहले सुना है तब आप मुझे ग्रेप फ्रूट बता सकते हैं. सो प्रायर एक्सपोजर से आपको इजी है वो रिकॉल करना. दिस इज कॉल्ड एज प्राइमिंग. देन व्हाट इज एसोसिएटिव लर्निंग? एसोसिएटिव लर्निंग का मतलब है या तो आपका दो स्टिमुलस के बीच में रिलेशनशिप आपको पता हो. फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि जब भी बेल बजेगी तब आपको फूड मिलेगा. दैट इज वन टाइप ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग. दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन द टू स्टिमुला. दूसरा ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर क्या आएगा? आपको पता है कि आप एक टास्क करोगे तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा तो आप बार बार वो टास्क करोगे. दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग. दोनों ही चीजों में आप दो चीजों को, दो टास्क, दो स्टिमुलाई या एक स्टिमुलाई और एक आउटकम को रिलेट कर रहे हो. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग. व्हाट इज नॉन एसोसिएटिव लर्निंग देन? इंडिपेंडेंट स्टिमुलस है, ठीक है, जैसे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं. सो रिफ्लेक्स पाथवे. Now these procedural memory, priming, associative learning और non-associative कहाँ stored होती है, इस पे MCQs आते हैं. So procedural memory क्या है? Basic skill है, तो इसीलिए striatum, cerebellum and motor cortex. Priming, that involves the neocortex because recognition of words हैं, objects हैं, इसीलिए. Associative learning में for classical conditioning and operant you are having amygdala and cerebellum. और non-associative that is involving the reflex pathways. ठीक है. Now explicit memory या declarative form of memory of words and rules and languages है, जिसके लिए आपको aware होना जरूरी है. So types of explicit memory that can be further be episodic memory और semantic memory. Episodic memory of events. ठीक है, कहाँ stored होगी? temporal cortex में या prefrontal cortex में. और सिमेंटिक मेमोरीज फैक्ट्स की मेमोरीज है, विच इज मोर लाइकली टू बी स्टोर्ड इन हिप्पोकैम्पस. अभी मैंने कहा था कि एक्सप्लिसिट मेमोरी दैट इज डिपेंडेंट ऑन हिप्पोकैम्पस. तो हिप्पोकैम्पस, मीडियल टेम्पोरल लोब एंड नियोकॉर्टेक्स. ठीक है. अब हमने एक चीज मिस कर दी यहाँ पर. आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड द क्लासिकल कंडीशनिंग एंड द ऑपरेंट कंडीशनिंग इन डिटेल. सो नाउ वी विल बी लुकिंग एट बोथ ऑफ देम इन डिटेल.
तो क्लासिकल कंडीशनिंग में आपको ब्रीफ कर चुकी हूँ कि दो स्टिमुलस के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करना, दैट इज द क्लासिकल कंडीशनिंग। तो पैवलो ने एक्सपेरिमेंट किया डॉग्स के ऊपर, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि रिलेशनशिप बिटवीन द टू स्टिमुलाई। तो पहला पैवलोस क्लासिकल एक्सपेरिमेंट है, इन विच द ऑर्गेनिज्म दैट लर्न्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वन स्टिमुलाई एंड अनदर स्टिमुलाई, दोनों स्टिमुलस होने चाहिए। तो पैवलो ने क्या किया, सबसे पहले डॉग को सिर्फ फूड दिया, उसने ऑब्जर्व किया कि सलाइवेशन हुआ। तो नेचुरल सी बात है, किसी भी बच्चे को भी आप खाना दोगे, सो व्हाट वुड बी द रिस्पॉन्स, सलाइवेशन वुड बी देयर। सो इसे इनेट इनबॉर्न रिस्पॉन्स कहेंगे। फिर उसने देखा, बेल दी, बेल बजाई, बेल को न्यूट्रल स्टिमुलस कहते हैं, बेल दी और देयर वाज नो सलाइवेशन, ठीक है, सलाइवेशन नहीं हुआ। अब उसने स्टार्ट में क्या शुरू किया, पहले बेल देता था हर बारी, फिर खाना देता था, दिस इज मीट, ओके, पहले खाना देता था फिर फूड देता था, सलाइवेशन होती थी। जैसे जैसे रिपीट करते गया, उसने ऑब्जर्व किया कि सिर्फ बेल से भी अब सलाइवेशन हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, द न्यूट्रल स्टिमुलाई, जो कि अर्लियर सलाइवेशन नहीं रिस्पॉन्स दे रहा था, दैट हैज बिकम अ कंडीशन स्टिमुलाई, बिना फूड के भी, विदाउट अनकंडीशन स्टिमुलस आल्सो नाउ इट इज गिविंग द रिस्पॉन्स, द आउटकम। इसलिए अब बेल क्या हो गया, कंडीशन स्टिमुलस। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि आपने फूड प्लस बेल दिया, ये डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है। यू आर गिविंग फूड प्लस बेल, तो क्या होगा, सो कौन सा रिस्पॉन्स होगा, ये इनेट रिस्पॉन्स या अनकंडीशनड होगा या कंडीशनड होगा। तो ये कंडीशनड रिस्पॉन्स नहीं होगा, ये इनेट होगा। फूड पहले दे रहे हो, फिर सलाइवेशन ऑब्जर्व करो, बेल दो या ना दो फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। सो इट वुड बी इनेट रिस्पॉन्स। रादर अब ऐसे करो, बेल दिया फिर फूड दिया और अब भी सलाइवेशन ऑब्जर्व हुआ, इस दोनों केस में सलाइवेशन हो रहा है, तो ये कौन सा रिस्पॉन्स हुआ, दिस वुड बी देन अ कंडीशनड रिस्पॉन्स, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द Pavlov's बेल एक्सपेरिमेंट। नाउ वी कम ऑन टू द ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग का भी एग्जांपल दूंगी। सो बिफोर दैट, ऑपरेंट कंडीशनिंग में दिस इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर लर्निंग। अब इसमें क्या था, डॉग का एक्सपेरिमेंट था। इसमें हम इमेजिन करते हैं एक रैट है केज के अंदर, एंड केज के अंदर बहुत सारे लीवर्स प्रेजेंट है। सो रैंडमली जो रैट है वो एक्सपेरिमेंटल रैट है, वो रैंडमली प्रेस कर रहा है लिवर को, ठीक है, और वो ऑब्जर्व करता है, एक बार वो एक पर्टिकुलर लिवर को वो प्रेस करता है और इन रिस्पॉन्स उसे रिवॉर्ड मिलता है। तो वो मोर लाइकली है कि वो बार बार उसी सेम लिवर को प्रेस करेगा, ओके। सो दिस इज द ट्रायल एंड एरर लर्निंग, जिसके अंदर एन ऑर्गेनिज्म दैट लर्न्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एन एक्शन एंड एन आउटकम, ठीक है, एंड दिस वाज स्टडीड बाय स्किनर। नाउ मेमोरी स्टोरेज के बारे में थोड़ा सा, although hippocampus that stores the spatial memory and amygdala that stores the fear memories, but the repository for most of the memories of the thought memories is that is considered to be the neocortex. Now we are classifying the memory in another basis, ठीक है। अब टाइम की ड्यूरेशन पे हम मेमोरी को क्लासिफाई करें, दोनों एक्सप्लिसिट एज वेल एज इम्प्लिसिट मेमोरीज। सो एक होती है वर्किंग मेमोरी या रीसेंट मेमोरी, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। कई कई इंटरमीडिएट भी इन्वॉल्व करते हैं। वील बी डिस्कसिंग द थ्री ऑफ देम। वर्किंग मेमोरी, रीसेंट मेमोरी 18 to 20 सेकेंड तक लास्ट करेगी, जब इंडिविजुअल प्लान ही कर रहा है एक्शन पे। जब तक इंडिविजुअल एक टास्क परफॉर्म कर रहा है और उसके बारे में जस्ट सोच रहा है, तब तक वर्किंग मेमोरी। एकदम से ध्यान हटा और गायब, तो ये गायब हो जाएगी, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी दैट लास्ट फ्रॉम सेकेंड्स to hour. Now what is the reason for the short term memory? So it is because of the circuit of reverberating neurons. Neurons का circuit है और वो फायर करता जा रहा है रिपीटेडली, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी। लॉन्ग टर्म मेमोरी दिस स्टोर्स इंफॉर्मेशन फॉर ईयर्स और समटाइम्स इवन लाइफ टाइम, एंड एक्चुअल स्ट्रक्चरल चेंज होगा साइनेप्स में। इसका मतलब क्या, स्ट्रक्चरल चेंज होगा साइनेप्स में, एनहांसमेंट होगी या सप्रेशन होगी सिग्नल कंडक्शन की। अब कैसे होगी, या तो इंक्रीज इन वेसिकल रिलीज साइट हो सकता है फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, या इंक्रीज इन नंबर ऑफ ट्रांसमीटर वेसिकल्स हो सकता है, या इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स हो सकता है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स हो सकता है, या फिर चेंज इन स्ट्रक्चरल डेंड्राइटिक स्पाइन्स भी हो सकता है, कि जो डेंड्राइट्स रिसीव कर रहे हैं उनका ही स्ट्रक्चरल चेंज आ जाए उनमें। तो दिस एक्चुअल स्ट्रक्चरल चेंज किसमें होगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में एक्चुअल स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं। I have enumerated few of these. Now during the short term memory,
Memory traces, these are subjected to disruption by trauma या various drugs. अगर आप trauma या drugs आए तो what is more likely to be affected? The short term memory would be affected, while the long term memory, that is much more resistant to disruption, that is remarkably resistant to disruption. And remember that short term memory conversion to long term memory that occurs in the hippocampus, और वो कैसे होती है long term potentiation की वजह से, वो हम आगे देखेंगे. बट ये याद रखना है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी कन्वर्ट होगी लॉन्ग टर्म मेमोरी में हिप्पोकैम्पस पे. Now let us come on to the neuronal basis of memory. Now आपको याद रखना है कि बॉडी में as such कोई भी न्यूरोनल मेमोरी सेल नहीं है, बॉडी में मेमोरी सेल कोई भी नहीं है. फिर how does memory storage that takes place? So the key to memory is alteration in the strength of selected synaptic connections. मतलब आपको एक टास्क को स्टोर करना है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो न्यूरोनल सर्किट है उसे आप रिपीटेडली फायर करोगे, उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस लाओगे ताकि वो या तो सप्रेस हो जाए या फिर वो फेवर हो जाए. ठीक है, सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टोर द मेमोरी. ऐसा कुछ नहीं है कि एक मेमोरी सेल है उसके अंदर इंफॉर्मेशन गई और हाँ स्टोर हो गई, ऐसा कुछ नहीं. Now these synaptic changes, this can be in the form of post-tetanic potentiation, habituation, sensitization and long-term potentiation. सबसे important जिससे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती है, दैट इज द लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे. अभी मैं आपको ब्रीफ कर रही हूँ to what do you understand by post-tetanic potentiation, habituation and sensitization. So post-tetanic potentiation ये होता क्या है, इसमें क्या है, occurs after a brief train of stimuli pre-synaptic neuron में. सबसे important difference तो पहले कि post-tetanic potentiation pre-synaptic neurons में होगा और long term potentiation post-synaptic neurons में. अब इसमें हुआ क्या, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है. प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ, उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, ये इन्फ्लक्स धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इसकी वजह से इंट्रासेलुलर कैल्शियम की जो कंसेंट्रेशन है दैट इज राइजिंग. एज अ रिजल्ट द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज दैट इंक्रीजेस. इसे कहेंगे पोस्ट टेटानिक पोटेंशिएशन. हैबिचुएशन क्या है, एक रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके अगेंस्ट एक स्टिमुलस आया, उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है ओवर अ ड्यूरेशन. आपकी कोई नेगेटिव हैबिट है, नेगेटिव रिस्पॉन्स है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हैबिचुएशन का एग्जाम्पल, आप एक नॉइजी रूम में बैठे हो, टीचर है और आपको जो आसपास की वॉइस है वो कंपैरेटिवली धीरे धीरे स्लो हो जाती है, आपको मतलब ज्यादा सुनाई नहीं देती. सो इसका मतलब ये थोड़ी आवाजें कम हो गई, आवाजें उतनी है बट द रिस्पॉन्स टू दैट स्टिमुलस दैट हैज डिक्रीज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो दिस वुड बी कॉल्ड एज हैबिचुएशन. सेंसिटाइजेशन क्या है, जो टीचर के वॉइस है कंपैरेटिवली धीरे धीरे इंपॉर्टेंट चीजें धीरे धीरे आपको सुनाई देने लग जाती है अगर आप फोकस करो. सो स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जो स्टिमुलस है उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स अगर बढ़ता जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट वुड बी सेंसिटाइजेशन. लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन क्या है, इसके अंदर चेंजेस आएंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में. सो लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन का मैकेनिज्म देखते हैं. सो इसके अंदर इट इज पहले तो डेफिनेशन, इट इज रैपिडली डेवलपिंग persistent enhancement of post-synaptic potential response to presynaptic stimulation after brief period of rapidly repeated stimulation of presynaptic neuron. So presynaptic neuron एक response दे रहा है, उसके against post-synaptic neuron में response बढ़ता जा रहा है, that would be called as long-term potentiation. Now unlike the post-tetanic potentiation, this is important. Unlike the post-tetanic potentiation, it is initiated by an increase in the intracellular calcium in post-synaptic neuron rather than pre-synaptic neuron. So post-tetanic potentiation में pre-synaptic neuron था और long-term potentiation में post-synaptic neuron है. अब होता कैसे है वो देखो. So जो pre-synaptic neuron है वो synaptic cleft के अंदर ग्लूटामेट रिलीज करेगा. अब पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे दो टाइप के रिसेप्टर्स हैं, एक है AMPA रिसेप्टर और दूसरा है NMDA रिसेप्टर्स. किस चीज के रिसेप्टर्स हैं, ग्लूटामेट के ही रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, लेकिन दो अलग टाइप के हैं, AMPA एंड NMDA. अब क्या होता है, ग्लूटामेट इज रिलीज फ्रॉम प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इट बाइंड्स टू AMPA एंड NMDA रिसेप्टर्स ऑन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. This causes depolarization which is triggered by activation of AMPA receptors. अब AMPA receptors के activation से क्या होता है, मैग्नीशियम ब्लॉक जो प्रेजेंट होता है वो रिलीव हो जाता है, वो मैग्नीशियम ब्लॉक हट जाता है जिसकी वजह से कैल्शियम और सोडियम का इन्फ्लक्स बढ़ जाता है. ठीक है, मैं आपको ब्रीफ एक्सप्लेन करती हूँ, देन वी लुक एट दिस साइकिल.
सो ये फिर से बता रही हूँ, ग्लूटामेट बाइंड किया एएमपी और एनएमडीए दोनों से, लेकिन एएमपीए के बाइंड एएमपीए रिसेप्टर से पे बाइंड करने से क्या होता है, जो मैग्नीशियम ब्लॉक है वो हट जाता है, जिसकी वजह से सोडियम और कैल्शियम का इन्फ्लक्स बढ़ जाता है। अब क्या होता है, ये कैल्शियम जाएगा और किससे बाइंड करेगा, कैल्मोड्यूलिन से बाइंड करेगा। अब कैल्शियम कैल्मोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स जो है, कैल्मोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्टिवेट किससे करेगा, कैम काइनेजेस को। कैम काइनेजेस क्या होते हैं, कैल्मोड्यूलिन काइनेजेस होते हैं। ये फिर वही करेंगे, प्रोटीन्स का फॉस्फोराइलेशन करवाएंगे। तो जो प्रोटीन्स अपने फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिव है वो एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। और जो रिसेप्टर्स हैं, चैनल्स हैं, वो भी एक्टिवेट होंगे। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, जो एएमपीए रिसेप्टर्स है इनको इनको फॉस्फोराइलेट करवाएंगे, ठीक है, जिससे इनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। और क्या करेंगे, और ज्यादा एएमपीए रिसेप्टर्स को सरफेस पे ले आएंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल एक्टिविटी ये बढ़ जाएगी। सो नाउ लेट अस लुक एट दिस now let us look at this flow chart. So glutamate released from presynaptic neuron that binds to AMPA and NMDA receptors, जिसकी वजह से क्या हुआ, depolarization हुआ, triggered by activation of AMPA receptors which relieves the magnesium block in NMDA receptor channel. This causes the calcium and sodium influx. Calcium binds to calmodulin, then this stimulates the calmodulin kinases, जिसकी वजह से phosphorylation of the AMPA receptors, and more AMPA receptors they move to the synaptic cell membrane. Overall depolarization जो post synaptic neuron की है, that would increase. So this was all about my video. अच्छा, एक last चीज कि जो ये long term potentiation हो रहा है, ये हो कहाँ पर रहा है, long term potentiation हिपोकैम्पस में हो रहा है, which is the site for conversion of short term memory into long term memory. और एक कहाँ पर होता है exactly, Schaffer collaterals में होता है, ठीक है. So this was all about the video guys, and please do like, share, and also subscribe to the channel. And in the chat box, please tell me what would you all like the topic for next video. Please tell your preferences for the next video, and I will likely to make videos on that particular topic, because I'm confused at the particular time for the topic. So thank you.